તણા કિરિયા આચાર અને મુખી તણા કિરિયા આચાર આવિગત માહે હે જિંદા કહે આવિગત માહે હે જિંદા કહે એક મન થઈને ઉભો રહે એક મન થઈને ઉભો રહે ગુરગત પાસે માંગે વચન ગુરગત પાસે માંગે વચન નિરમલ કરાવે જીવને તન નિરમલ કરાવે જીવને તન. दिनदारों, सबसे पेशतर हमारे आकाए नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. दिनदारों, अभी अभी हमने सैयद इमाम शाह के एक गिनान के कुछ पाठ सुने. ये पूरा गिनान मुखी के मकाम और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में है. इस्माइली तारीख में हिंदुस्तान में जो इस्माइली दावत का काम हुआ वो एक सुनहरा बाब है. इस्माइली तरीक़े के निज़ाम में इस दावत के नतीजे में एक ऐसे बाब का इजाफा हुआ जो आज तक जिंदा है और जिस पर आज तक हमारी जमातें अमल कर रही हैं. इमाम की तरफ से दावत देते हुए हमारे पीरों ने जमात खाने कायम किए, मुखी मुकर्रर किए, मजहबी रसूमात दी और उन्हें किस तरह अंजाम दिया जाए उसका तरीक़ा बताया और उसके मानी और फ़लसफ़े बताए. उसी वक्त से मुखी का मनसब हमारी जमात में चला आ रहा है. मुखी के मानी है सरबरा या लीडर. कामड़िया का इजाफा हमारे तरीक़े में काफ़ी बाद में हुआ है और ये लफ्ज़ कामदार से निकला है. गिनानों में मुखी के फ़राइज़, ज़िम्मेदारी और मकाम के मुतल्लिक बहुत से मकामात पर बयान आया है. पीर सदगुर नूर, पीर शम्स, पीर सदरदीन, पीर हसन कबीरदीन और सैयद इमाम शाह, इन सब से मंसूब गिनानों में मुखी के मनसब का बयान आया है. हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मुखी कामड़िया के बगैर जमात नहीं चल सकती. वो हमारी जानिब से मुकर्रर शुदा हैं. जमात खाने में जहां हमारा तख्त है वहां जमात सजदा करती है, दुआ पढ़ती है, पंजा लेती है और दूसरे सवाब के काम भी करती है. लोग लकड़ी के तख्त या रुई की गद्दी को सजदा नहीं करते बल्कि ऐसा समझकर सजदा करते हैं कि मुर्तजा अली की नस्ल कायम चली आ रही है और उसी नस्ल में हाल के हाजिर इमाम को वो झुकते हैं
اور اس وقت کے حاضر امام کا نام لے کر سجدہ کرتے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے تمام جاموں کا نور اس وقت کے 48ویں جامے میں سمایا ہوا ہے۔ ایسے مرتبہ والی جگہ پر مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کمشنر ایک نوکر ہے، مگر وہ اپنی سرکار یا بادشاہ کی طرف سے حکم چلاتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ دین کے متعلق بھی ایسا ہی سمجھنا۔ جماعت میں جو مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں وہ ہماری طرف سے جماعت میں کام چلانے والے ہیں، وہ جماعت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ جماعت ایک دن بھی مکھی کامڑیا کے بغیر نہیں رہنی چاہیے۔ اس میں آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ مکھی کامڑیا اگر جماعت میں حاضر نہ دے تو جماعت کس طرح چل سکے؟ جب تک شام کی تمام کارروائی پوری نہ ہو جائے اس وقت تک مکھی کامڑیا کو ہماری جگہ پر سے اٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ بیٹھے رہنا چاہیے اور ہماری کارسازی اور ہمیں پیش کیے ہوئے تحفوں اور نذرانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جماعت خانوں میں مکھی اور کامڑیا زمانے کے امام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آج ہم پورے انڈیا میں ان مکھیوں اور کامڑیاؤں کو ایک فرمان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ جماعت خانے میں امام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اگر وہ امام کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ جماعت امام کے فرامین پر عمل کر رہی ہے اور وہ ان فرامین کو جماعت کے لیے واضح کریں۔ ہم نے جماعت میں اتحاد کے متعلق فرامین فرمائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی اور کامڑیا اس بات کو یقینی بنائیں اور جو کچھ ممکن ہو وہ کریں کہ نہ صرف بمبئی میں بلکہ پورے انڈیا میں ہماری جماعت میں اتحاد ہو۔ ہم نے تعاون یعنی کوآپریشن کے متعلق فرامین فرمائے ہیں۔ مقامی اداروں یعنی لوکل انسٹیٹیوشنز اور مرکزی اداروں یعنی سینٹرل انسٹیٹیوشن کے درمیان تعاون کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی اور کامڑیا یہ دیکھنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ کریں کہ اپ کنٹری کے ادارے مرکزی اداروں کے ساتھ اپنے کام اچھی طرح کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جماعت خانے میں حاضری سے متعلق فرامین فرمائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مکھی کامڑیا اس بات کو یقینی بنائیں کہ جماعت اپنی عبادات میں اور جماعت خانے کی اپنی حاضری میں پابند ہے۔ یہ معاملات ہیں جہاں مکھی اور کامڑیا امام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جماعت ان وجوہات کو سمجھتی ہے جن کے تحت یہ فرامین فرمائے گئے ہیں۔ دیندارو، جو گنان شروع میں آپ نے سنا، جس کے چند پاٹ آپ نے سنے، سید امام شاہ کا یہ پورا گنان مکھی کے مقام اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہے، اور یہ گنان اس وقت میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سید امام شاہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سنو منیورو وید وچار ان مکھی تڑا کریا آچار، یعنی اے مومنو تم دینی کتابوں کی تعلیم سنو، دینی کتابوں کی باتیں سنو اور اس پر غور کرو کہ مکھی کے فرائض کیا ہیں، مکھی کو کیا کرنا چاہیے۔ آوی گتما ہے زندہ کہے، ایک من تھئی نے ابھو رہے، یعنی جماعت میں آ کر ہے زندہ کہے
और एक ध्यान होकर खड़ा रहे। गुरगत पासे मांगे वचन, निर्मल करावे जीव ने तन। गत जमात से वादा ले, गत जमात से वचन मांगे, रूह और जिस्म को पाक कराए। क्योंकि जमाने के इमाम की तरफ से इन पर यह जिम्मेदारी रखी गई है, इनको ये फरमान और अम्र दिया गया है कि वो उस अम्र के जरिया मोमिनीन के गुनाहों को माफ करके उनको पाक व पाकीज़ा करते हैं। ताहा गत मिली ने करे आशीष, आज गतमा गुरनर छे जगदीश। वहां जमात मिलकर दुआ कराती है, आज जमात में जमीन व आसमान का मालिक गुरनर है। ત્યાં તો નાના મોટા સહુ કર ગરે, તારે जपे पीरशाह ने तौबा करे। वहां छोटे बड़े सब बहुत ज्यादा गिरियाउजारी करते हैं, उस वक्त पीर शाह का जिक्र करते हैं और तौबा करते हैं। कही फरमान ने मान जो लहे, तहा नर वक्त थई ने उभो रहे। फरमान कहकर अपना ओहदा संभाले, यानी अपने सीट पर जाकर बैठे, अपनी जगह पर जाकर बैठे, वहां आजिज होकर इनकसारी के साथ खड़ा रहे। रिदामा राखे पीर शाना जाप, अने तोबा थकी उतारे पाप। दिल में पीर शाह का जिक्र रखे, यानी अपने दिल में हमेशा मौला का जिक्र करता रहे और तौबा के जरिया गुनाहों को दूर करे, यानी खुद भी तौबा करके अपने गुनाहों को दूर करे, और जब लोग उनके पास गुनाहों की माफी के लिए आते हैं तो इमाम के दिए हुए अम्र के जरिया उनके गुनाहों को माफ कराए। तारे मान थकी आशीष जो करे, अने जपे जाप पातक उतरे। अपने ओहदे के लिहाज से दुआ करे और जिक्र करे ताकि गुनाह दूर हो। अभिमान उतारी उभा रहे, अने नमी गतने है जिंदा कहे। तकब्बुर को दूर करके खड़ा रहे और झुककर गत को है जिंदा कहे। मुखी को जो मकाम इमाम ने दिया है वो इमाम की एक रहमत है, इमाम की एक अमानत है, और उसमें आजिज़ी और इनकसारी की जरूरत है। ये कोई जाती तौर पर हासिल की हुई चीज नहीं कि जिसके लिए बड़ाई या तकब्बुरी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ खास तौर पर यह फरमाया गया कि तकब्बुर को दूर करके खड़ा रहे और झुककर आजिज़ी के साथ जमात को है जिंदा कहे। पछे एक मन थईने डग जो भरे, अने मुखी तणे आसन संचरे। फिर एक ध्यान होकर कदम उठाए और मुखी की जगह संभाले। ते आसन जईने करे है जिंदा, शाह बख्शो गुरगत ना गुना। वो अपनी जगह पर जाकर है जिंदा कहे और दुआ करे कि ऐ मौला जमात के गुनाह बख्श देना। भाई ता सत संतोखे बेसे सही, अने दया खमिया रहनी सही। ऐ भाई, वहां वो सच्चाई और इत्मीनान के साथ बैठे और मेहरबानी और अफू दरगुजर के जज्बे से रहे। एक मन थई ने मुखी जो भणे, अने गुरनर आल एक करी गणे। एक ध्यान होकर मुखी ये कहे और गुरनर आल को एक समझे। जे आले गुरनर बैठा सही, तारे दिल मा मुखिए दीठा सही। जिस आल में गुरनर बैठे हैं उन्हें दिल में मुखी ने बरहक देखा, यानी जमाने के इमाम को मुखी अपने दिल से पहचाने और उसकी मुकम्मल शनाख्त हासिल करे।
જીવતા આપે મર્તક હોઈને રહે અને સુખ દુઃખ દિલનું અલીને કહે. जीते जी खुद मर कर रहता है और दिल का सुख दुख अली से कहता है. मुखी ते जे भार गतनो आप सहे अने पर वेदना दुख दिल मांग रहे. मुखी वो है जो जमात का बोझ खुद बर्दाश्त करता है और दूसरों के दुख दर्द को अपने दिल में रखता है. इन दो पाठों में आपने देखा कितनी अहम बातें कही गई है. एक तो बर्दाश्त की बात है कि मुखी इस तरह बनकर रहता है कि जैसे जीते जी वो मर गया है और सुख दुख की बात वो अपने मौला के साथ करता है और वो सारी जमात का दुख दर्द बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है और दूसरों के दुख दर्द की बातें वो अपने दिल में रखता है. ते थापना करे कड़श निसार जेमा निरंजन संचराचार. वो घटपाट की स्थापना अच्छी तरह से करता है जिसमें नाकाबिल दीद मौला भरपूर बैठा हुआ है. मुखी ते जे मन मारी रहे अने मुखमाथी मार कोने न कहे. मुखी वो है जो अपना मन मार कर रहे और अपने मुंह से किसी को बुरा भला न कहे. यानी मुखी के मकाम से ये बहुत बईद बहुत दूर बात है कि मुखी कभी बड़ाई करे या अपनी जबान से कभी कोई नाजेबा या नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करे. वो अपनी अना को खत्म कर दे. फरमाते हैं मुखी वो है जो अपना मन मार कर रहे और अपनी जबान से अपने मुंह से कभी भी कोई नाजिबा कलिमा इस्तेमाल न करे. जे नित नित हाल गुजारे आप अने दुआ जानी उतारे पाप. जो हमेशा जमात में आए और दुआ समझकर गुनाहों को दूर करे. ते करे आशीष ने छुटाड़े करम अने गतनी क्रिया आचारे वाधे धर्म. वो दुआ देता है और आमाल के नताइज से आगाह करता है और जमात के आमाल अंजाम देता है और धर्म में बढ़ाता है, मजहब में उनको आगे बढ़ाता है. जे बोले आचरे ने वचन पाड़े तोबा करावी ने संगे जई मिले. जो कहता है उस पर अमल करता है. यानी मुखी ने जो कौल दिया है उससे पूरा करता है. जो कहता है उस पर अमल करता है और कौल को पूरा करता है. तौबा करवाकर उनके साथ मिलता है. एवी क्रिया मुखी ने सदगुर कहे नित नित हाल गुजारी ने मान जो लहे. सदगुर फरमाते हैं कि मुखी के ऐसे फराइज हैं हमेशा जमात में आए और अपना रुतबा संभाले. मुखी क्रिया आचार सु रहणी रहे एवी दुआ ते इंद्र इमाम शाह कहे. मुखी अपने फराइज पर अमल करता रहे ऐसी दुआ इंद्र इमाम शाह करते हैं. तो ये पूरा गिनान सैयद इंद्र इमाम दीन का है जिसमें मुखी के मकाम और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बात की गई है. ये पूरा गिनान जो सुनना चाहते हैं तो इतरब गिनान ग्रुप की जानिब से गिनान्स इन ट्रेडिशनल ट्यून्स की जो सीरीज है उसके 44वें नंबर 44th जो कैसेट है उसमें ये पूरा गिनान मौजूद है. इसके अलावा सैयद इमाम शाह ने एक और गिनान के अंदर जो प्रथम 8 लाख करण ये गिनान है इसमें भी बहुत से ऐसे पाठ बयान किए हैं कि जो मुखी के मकाम और मुखी की जिम्मेदारियों के बारे में है और वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूं. मुखी ते जे जीव ने मोक्ष जो आले अने मोक्ष मुगतनो मरम बतावे. यानी मुखी का मकाम यह है, मुखी वो है जो रूहों को नजात दिलवाता है और नजात के रास्ते का भेद बताता है, नजात के रास्ते का राज बताता है.
मुखी ते जे किसके घर जावे उसके जीव का भला कर आवे। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि जब उनके घर में मुखी या मुखी कामड़िया आते हैं तो वो समझते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, उनको बड़ा ऑनर मिला है कि मुखी उनके घर में आए हैं। और यहाँ भी फरमाया गया कि मुखी का कदम किसी के घर में पड़ना उस घर के लिए बरकत का बायस होना चाहिए। कि मुखी तेज किसके घर जावे, यानी मुखी ऐसा होना चाहिए कि अगर वो किसी के घर गया है तो ये बात यकीनी हो कि उसका कुछ भला होने वाला है, उसके घर में कुछ भलाई होने वाली है। मुखी तेज किसके घर जावे, मुखी वो है जो अगर किसी के घर जाए उनके जीव का भला करावे, वो उनके रूह के लिए कुछ भलाई ही करके आएगा। मुखी तेज असत ना मार्ग न चाले अने जीव को मोक्ष मुगत ले जावे। मुखी वो है जो कभी गलत रास्ते पर न चले, कभी झूठ के रास्ते पर न चले। मुखी कामड़िया पूरी जमात के वास्ते एक मिसाल होते हैं, माँ बाप के रूप में होते हैं, और जमात हमेशा ये देखना चाहती है कि वो मुखी कामड़िया के नक्शे कदम पर चले। इसलिए फरमाया गया कि मुखी तेज असत ना मार्ग न चाले, मुखी कभी गलत रास्ते पर, झूठे रास्ते पर न चले, अने जीव को मोक्ष मुगत ले जावे, और रूहों को नजात दिलाने का काम करे, नजात दिलाने का रास्ता बताए। मुखी तेज सर्वे बला निकाले अने लख 84 ना फेरा टाणे। मुखी वो है जो तमाम बीमारी बला आफतें दूर करता है और लख 84 के फेरे यानी रूह के आने जाने के चक्कर से उनको आजाद कर देता है। मुखी तेज मुआ मानवी जीवता करे, जिनका दिल होए तेना काज सारे। मुखी का मकाम तो यह है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर दे, और जिसका जैसा दिल हो, जिसकी जैसी नियत हो, उसके मुताबिक उसका काम कर दे। मुखी तेज सारे घर को जीव दावे अने बमणी कमाई कबूल करावे। मुखी सारे घर को नजात दिलवाता है और उसकी डबल कमाई कबूल करवाता है। मुखी तेजे डाया होवे, मुखी वो है जो शरीफ होता है, नेक होता है, मासूम होता है, अने सर्वे जीव को वैकुंठ में बहावे और तमाम रूहों को जन्नत में ले जाता है। मुखी ते जे आप अमर भेद जाने अने अगम निगम नी वात पिछाणे। मुखी वो है जो बहुत ज्यादा मजहब के भेद जानता है, अमर भेद जानता है, और माजी और मुस्तकबिल के राज और भेदों को भी जानता है। मुखी ते जे सुध बुध वरसात की जाने अने सर्वे ना घर नी वात प्रमाणे। मुखी तो बारिश के भेद को भी, बारिश की बात को भी जानता है और हर एक के घर की बात को भी जानता है, क्योंकि वो हर घर के लिए, जमात के हर फर्द के, हर खानदान के लिए वो माँ बाप का मकाम रखते हैं। मुखी तेज पीर पैगंबर को नजरे देखे अने जरन मरन की हाल जो पेखे। मुखी तो पीर पैगंबरों को अपनी नजरों से देखता है और जिंदगी और मौत के भेद को भी जानता है। मुखी ते जे सतवात साची करी माने, तहां कमाई सही करी जाने। मुखी वो है जो सच्ची बात को हमेशा सच समझे और उसके जरिया से जो कमाई हासिल होती है उससे सही समझे। तेमनी सेवा अमर जागे अने सत सबूरी संतोख मांगे। उनकी जो खिदमत है वो अमर है, या उनकी जो खिदमत करता है वो अमर खिदमत है, और उसके जरिया सत सबूरी और संतोख यानी सच्चाई, सबर और किनात हासिल होती है। जे एक मन चिन सतपंथ ध्याए, ते मुखी तो वहीं कुट जावे। जो एक ध्यान होकर सतपंथ के रास्ते पर चलता है वो मुखी जन्नत में जाता है। तो जिंदारो, ये हमारे सतपंथ लिटरेचर में, हमारे पीरों के गिनान में मुखी के मकाम और उनकी जिम्मेदारी के बारे में जो बातें थी वो कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश की। हमारे सतपंथ मजहब की ये एक बहुत ही बड़ी खूबी है, एक बहुत ही शानदार और मजबूत रिवायत है जो गुज़श्ता कई सदियों से हमारी जमात में चली आ रही है, और आज भी ये रिवायत हमारी जमात के अंदर जिंदा है और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलती जा रही है।
خاص طور پر اس میں جو ہدایات موجود ہے، اس میں مکھی کامڑیاؤں کے لیے جو ذمہ داریوں کی بات کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر ہمارے مکھی صاحبان کے لیے اور کامڑے صاحبان کے لیے۔ مولانا حاضر امام نے ایک ملاقات کے موقع پر فرمایا کہ جماعت خانہ is a place of worship. Therefore, the presence of Imam is always there, spiritually or through his appointees. یعنی جماعت خانہ ایک عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس لیے امام کی موجودگی وہاں ہمیشہ ہے، روحانی طور پر یا پھر اپنے مقرر کیے ہوئے مکھی کامڑے صاحبان کے ذریعہ۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس منصب کو مولانا حاضر امام کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس منصب پہ مولانا حاضر امام نے کتنی ذمہ داری دی ہے کہ جماعت کے مختلف شعبوں میں ترقی کی ذمہ داری اور نگرانی کا کام مولانا نے ان لوگوں کے سپرد کیا ہے۔ تو بحیثیت مکھی کامڑے صاحبان ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق اور جو گنان اور فرامین کی ہدایت میں جو باتیں پیش کی گئی، ان ہدایات کی روشنی پر ہم اس منصب پر کس طرح عمل کر رہے ہیں، اس منصب کو کس طرح سنبھال رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کی بھی ہم سے کیا توقعات ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم امام کی توقعات پر بھی پورے اتریں اور جماعت کی توقعات پر بھی پورا اترے، کیونکہ یہ ہمارے جماعت میں ایک بہت ہی اہم منصب ہے۔ مولانا حاضر امام ہم سب کو اپنی خدمت میں رکھے اور ہماری خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔